Good afternoon, friends. Important video on recent waiver of late fees on belated filing of GSTR 9C. We are getting many queries whether 9 also include 9C. What happened for the late fees? Whether that is separately chargeable for delayed filing of 9 and 9C. What happened if I have filed 9 on or before due date but did not file 9C, which I'm filing now, with a late fees going to be applicable? Or I filed 9 after the due date, paid the late fees, but could not file 9C, and now I'm filing a 9C with a late fees going to be applicable. Many queries. So I've created this video with relevant provision, notification, and created frequently asked question also for clarity on this subject matter. Let me share my screen first. If you look at section 44, which talks about annual return, it clearly talking about that every registered person other than ISD, a person paying tax under section 51 TDS deductor, TCS, casual taxable person, non-resident taxable person, shall furnish annual return, which is GSTR 9, which may include a self-certified reconciliation statement, which is GSTR 9C. So whenever we are talking about filing of annual return as applicable under section 44, it will also include GSTR 9C, self-certified reconciliation statement. Earlier, it was certified by practicing chartered accountant or cost accountant. From financial year 2021 onwards, it is self-certified by the registered person. So for clarity sake, सबसे पहले आपको ये समझना है कि जब एनुअल रिटर्न आप 9 में भर रहे हैं तो इसका मतलब है इट विल ऑल्सो इंक्लूड 9C. अब डिफरेंट थ्रेशोल्ड हैं. हम 9 कब भरते हैं? व्हेन एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन 2 करोड़. और GSTR 9C कब भरते हैं? व्हेन एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन 5 करोड़. सो जब हम समझने की कोशिश करें कि एनुअल रिटर्न जो सेक्शन 44 में है, विच विल इंक्लूड GSTR 9C. Now this is also coming out from the recommendation of 55th GST Council meeting. First clarity. Now, if you delay in filing annual return 9, which include 9C also, what would be the late fees? पहले हम ये समझ लेते हैं कि normally late fees लगती कितनी है. Section 47 subsection 2. And it is saying that any registered person who fails to furnish the return required under section 44. अब देखिए यहां पे 9 और 9C अलग नहीं कहता. सिंपल कहता है कि जो सेक्शन 44 में एनुअल रिटर्न है, which will include 9C also, if you fails to file by due date, then there would be late fees of 100 rupees for every day from CGST perspective. And same amount from SGST perspective, 200 rupees per day, during which such failure continues, subject to maximum of an amount at 0.25% of his turnover. So totaling together 0.5% of his turnover in the state or union territory. So this is the late fees for not filing of GSTR 9, and quite obvious. 9 भरने के बाद ही आप 9C भरते हैं. So this is for both together. 9 and 9C. कोई separate लेट फीस नहीं है 9 के लिए और 9C के लिए. ये पहला पार्ट हुआ. अब हम देखते हैं जो रिसेंटली एक नोटिफिकेशन इशू हुआ
उनने उस नोटिफिकेशन में क्या कहा? फॉर इनिशियल 6 फाइनेंशियल ईयर, तो मैंने आपके लिए कलर्ड भी कर दिया है जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी समझने के लिए। देयर वुड बी वेवर ऑफ लेट फी रेफर्ड इन सेक्शन 47, वेवर मिलेगा सेक्शन 47 में in respect of written furnished under section 44, और 44 का मतलब समझ जाइए 9 and 9C both together for the financial year, 6 सालों के लिए 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 and 22-23, 6 सालों के लिए, which is in excess of late fees payable under section 47 of the said act up to the date of furnishing of form 9 for the said financial year for the class of registered person who were required to furnish reconciliation statement in form 9C along with annual return GSTR 9 for the said financial year, but they failed to furnish the same along with फॉर्म 9, सो 9C आपने नहीं भरा लेकिन 9 भर दिया, एंड फर्निश द सेड स्टेटमेंट इन फॉर्म 9C, जो आप 9C नहीं भर पाए, अगर आप उसको भरेंगे सब्सिक्वेंटली ऑन और आफ्टर, सॉरी ऑन और बिफोर 31st March 2025, यानी what this provision is saying, this provision is saying you were supposed to file 9 and 9C both together, but आपने 9 भरा और बाय ड्यू डेट तक आपने भरा, बाय ड्यू डेट तक आपने भरा। पहला ही सिचुएशन ये आती है, सिर्फ 9C आप नहीं भर पाए, तो अगर वो 9C इनिशियल 6 फाइनेंशियल ईयर्स का अगर आप 31 मार्च 2025 तक भर देंगे तो आपके ऊपर कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। लेकिन मान लीजिए आपने GSTR 9 लेट भरा फॉर इनिशियल 6 फाइनेंशियल ईयर और आपने लेट फीस भी पे की, अब 9C आप उसका नहीं भर पाए जो आपको भरना था। अगर आप वो 9C 31 मार्च 2025 तक भर देंगे तो आपके ऊपर कोई एक्सेस लेट फीस नहीं लगेगी, विच इज इन एक्सेस ऑफ, नहीं लगेगी, यानी उस डेट तक जहां तक आपका डिले हुआ था फॉर फाइलिंग 9, अगर आपने वो लेट फीस पे कर दी थी तो 9C बिलेटेड के लिए कोई लेट फीस नहीं लगेगी। एक कंडीशन, आप 31 मार्च 2025 तक अपना 9C भर दें। ऐसा भी हो सकता है कि आपने लेट फीस बिलेटेड 9C के लिए पे कर दी, क्योंकि सब्जेक्टिव मैटर लॉट मेनी सो कॉज नोटिस आर बीइंग इशूड और आपको सो कॉज नोटिस आ गया कि आपने 9C लेट भरा था, तो आपने लेट फीस पे भी कर दी, तो क्या आपको रिफंड मिलेगा? ये नोटिफिकेशन स्पेसिफिकली मना करता है नो रिफंड of late fees already paid in respect of delay furnishing of 9C for the said financial year, initial 6 फाइनेंशियल ईयर, आपको वो वापस नहीं मिलेगा। इट्स अ पॉइंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जो कॉम्प्लायंट टैक्स पेयर है उसने अगर लेट फीस दे दी, आप उसको रिफंड नहीं देंगे, एंड दैट इज व्हाट हमने देखा है जीएसटी में usual scenario, but that is a different point, different subjectivity, and of course can be litigated, but this is what this notification is saying. अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो लेट फीस का प्रोविजन है, मान लीजिए ऐसा केस भी तो हो सकता है कि आपने 9 भी नहीं भरा और 9C भी नहीं भरा, पॉसिबल है ना? तो ऐसे केस में आपके ऊपर लेट फीस लगेगी क्या, और लगेगी तो कितनी लगेगी? हमने सेक्शन 47 में जब पढ़ा तो उन्होंने कहा 200 रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 0.5% ऑफ द टर्नओवर, यही पढ़ा। बट इसके लिए भी एक नोटिफिकेशन इशू हुआ, उस नोटिफिकेशन को मैं आपको दिखाता हूं।
This notification is 7/2023 Central Tax dated 31st March 2023. अब ये क्या कहता है इसको देखिए, because that late fees, it is governing the late fees for annual return which includes GSTR 9C also. They're saying they're waiving the amount of late fees referred in section 47. So section 47 में जो 100 rupees per day था CGST and 100 rupees per day from SGST, they are waiving that amount in respect of return to be furnished under section 44, जिसको हम बार बार कह रहे हैं 9 and 9C, for the financial year 22-23 onwards. तो अब ये लेट फीस गवर्न कर रहा है only from financial year 22-23 onwards, which is in excess of, यानी in excess of amount specified in column 3. column 3 में जो amount है उससे ऊपर जितना अमाउंट होगा उसको वो एग्जिम्ट कर रहा है, वेवर कर रहा है जिसकी। तो हम समझ लेते हैं क्या कर रहा है ये। फर्स्ट केस, रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए की है, up to 5 crore rupees in relevant financial year starting from 22-23 and onwards. So आगे आने वाले सभी सालों में 23, 24 and way forward. So 22, 23, 23, 24 and onwards आप ऐसे रीड कर सकते हैं। 25 रुपीज पर डे CGST का नोटिफिकेशन है, तो क्वाइट ऑब्वियस 50 रुपीज पर डे CGST एंड SGST subject to maximum of an amount calculated at 0.02%. So ये हो जाएगा 0.04% of turnover in the state or UT। पर किसके लिए? वो रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़। जहां पे एग्रीगेट टर्नओवर 5 से 20 करोड़ रुपए है, 5 to 20 करोड़ इन रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, वहां पे दिस इज 50 रुपीज पर डे। So it will be 100 rupees per day CGST and SGST, but normally आपको याद है ना 200 रुपए पर डे था। So ये आपके ऊपर लीविएबल होगा, जो भी इन एक्सेस है दैट इज गोइंग टू बी वेव्ड ऑफ एज पर दिस notification, subject to maximum of 0.02%, which is 0.04% CGST plus SGST। अब जो 20 करोड़ से ऊपर है, क्वाइट इम्प्लाइड, 20 करोड़ के लिए जो नॉर्मल प्रोविजन है 100 रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 0.25% ऑफ टर्नओवर, यानी 200 रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू 0.5% ऑफ टर्नओवर, वो लगेगा। नीचे पढ़ लीजिए इंपॉर्टेंट प्रोविजन, प्रोवाइडेड दैट रजिस्टर्ड पर्सन who fails to furnish the return under section 44. So again and again recalling, furnished return under section 44 includes 9, including GSTR 9C, by the due date of any financial year, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22। So उसके लिए ये प्रोविजन था, but furnish the said return between the period 1st day of April 23 to 31st day of August 23। उस प्रोविजन में एक एमनेस्टी आई थी। The total amount of late fee under section 47 was capped and shall stand waived, which is in excess of 10,000 rupees। So ये प्रोविजन स्पेसिफिक एमनेस्टी उन सालों के लिए थी 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 एंड 21-22, जिसकी लास्ट डेट थी 31st अगस्त 2023। बट अभी ये लेट फीस फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 22-23 ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल है। तो अगर आपने 9 नहीं भरा, क्वाइट ऑब्वियस है 9C भी नहीं भरा होगा, तो आपके ऊपर जो लेट फीस लगेगी वो ये लगेगी। 5 करोड़ तक है तो 50 रुपए पर डे, 5 करोड़ से 20 करोड़ के बीच में है तो 100 रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 0.04%, और 20 करोड़ से ऊपर है तो 200 रुपीज पर डे
सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 0.5% ऑफ टर्नओवर। ये मैंने अब आपको बता दिया। अब हम एफएक्यू, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, आपके सामने कई क्वेश्चन हमारे सामने हैं, आप भी देखिए, एंड आई एम ट्राइंग टू रिजॉल्व दोज क्वेरीज वन बाय वन, सो प्लीज टेक इट फॉरवर्ड। पहला क्वेश्चन, with a filing of 9 under section 44 annual return includes GSTR 9C? Answer is yes. Write section 44 subsection 2 till July 31st 2021 and then got amended. Write section 44 subsection 1 with effect from August 1 2021, read with rule 80 of CGST rule। तो यानी एनुअल रिटर्न जो हम सेक्शन 44 में देख रहे हैं, दैट आल्सो इंक्लूड्स जीएसटीआर 9C। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप भी कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे आंसर्स आपको कर दिए हैं, बट यू ट्राई बाय योरसेल्फ। यू हैव फाइल्ड 9, आपने 9 ऑन और बिफोर ड्यू डेट फॉर इनिशियल 6 फाइनेंशियल ईयर आपने फाइल कर दिया, बिफोर ड्यू डेट फाइल कर दिया था, तो क्वाइट ऑब्वियस है कोई लेट फीस आपने नहीं दी होगी। बट आपने 9C नहीं भरा, क्योंकि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर थी, हम मान लेते हैं। मैं थ्रेशोल्ड की एक टेबल भी बनाई है कि किन सालों के लिए कितना थ्रेशोल्ड होता था फॉर 9 एंड 9C। आई विल शो यू दैट टेबल ऑल्सो। पर आपने 9C नहीं भरा, 9 तो भर दिया ड्यू डेट से पहले, 9C नहीं भरा, तो क्या जो वेवर ऑफ लेट फीस जो मिल रही है एज पर नोटिफिकेशन नंबर 8/2025 आपको बेनिफिट मिलेगी या नहीं मिलेगी? फाइलिंग ऑफ 9 ऑल्सो इंक्लूड्स 9C, मैंने ये कह दिया है, देन इट इज कंप्लीट एज पर सेक्शन 44। हेंस 9C अगर एप्लीकेबल है आपके केस में बिकॉज ऑफ थ्रेशोल्ड अमाउंट, अगर आप 31 मार्च 2025 से पहले भर देंगे तो कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। होप दिस पार्ट इज क्लियर। बट एक ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में फिर आ सकता है कि मान लीजिए मैंने 31 मार्च 25 तक 9C नहीं भरा, तो क्या होगा? पर 9 तो मैंने ड्यू डेट तक भर दिया था। ऐसा हो सकता है ना, आपके माइंड में आ सकता है कि 9 मैंने ड्यू डेट तक भर दिया, 9C के लिए जो स्पेसिफिक वेबर आया है वो 31 मार्च 25 तक की बात करता है। लेकिन अगर मैंने 31 मार्च 25 तक नहीं भरा तो इंप्लीकेशन क्या होगा? क्वाइट ऑब्वियस है कि अगर आपने 9C नहीं भरा तो सेक्शन 44 की जो रिक्वायरमेंट है वो आपने फुलफिल नहीं की। सो इफ यू फाइल आफ्टर March 31, 2025, तो आपके ऊपर लेट फीस लगेगी फॉर फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न 9 इंक्लूडिंग 9C, एंड दैट वुड बी फ्रॉम द डेट ऑफ एक्चुअल फाइलिंग। जिस दिन आपने 9C भरा ड्यू डेट से लेके एक्चुअल डेट, अगर आप 31 मार्च 2025 के बाद फाइल करेंगे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो 9C आपको 31 मार्च 2025 तक भरना है। अगर आपने नहीं भरा तो ड्यू डेट जब एनुअल रिटर्न ड्यू था, आपने भर तो दिया 9, लेकिन 9 को इनकम्प्लीट माना जाएगा। वहां से लेके एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ 9C तक के लिए जो लेट फीस एप्लीकेबल है वो आपको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसे हमको समझ में आ जाए। इफ नो GSTR 9 इंक्लूडिंग 9C, अब ना आपने 9 भरा ना 9C भरा फॉर इनिशियल 6 फाइनेंशियल ईयर, एनी वेवर ऑफ लेट फीस, आपने 9 भी नहीं भरा था और 9C भी नहीं भरा, तो क्या आपको कोई वेवर मिलेगा क्या? सर नहीं मिलेगा। ये जो वेवर आया है नोटिफिकेशन जिसको हम रेफर कर रहे हैं 8/2025 सेंट्रल टैक्स, ये तभी है जब आपने 9 भर दिया है, आइदर बिफोर ड्यू डेट या आफ्टर ड्यू डेट विथ लेट फीस। लेकिन अगर आपने 9 नहीं भरा तो आपको वेवर नहीं मिलेगा। सो अगर आपने 9 नहीं भरा इंक्लूडिंग 9C, तो नो वेवर, और लेट फीस अब कितनी लगेगी आपके ऊपर? आप देख लीजिएगा जो लेट फीस के प्रोविजन है, रेड विद द नोटिफिकेशन,
नोटिफिकेशन नंबर मैंने आपको 7/2023 रेफर्ड किया यहाँ पे, लेकिन बट आपको ध्यान रखना है 7/2023 एप्लीकेबल ओनली फ्रॉम 22-23 ऑनवर्ड्स, ओनली फ्रॉम 22-23 ऑनवर्ड्स। पहले जो प्रोविजन होते थे, जो प्रोविजन 100 रुपीज पर डे from CGST, then 200 rupees per day, subject to maximum of 0.5% per quarter. That is going to be applicable for initial 6 years. So bear in your mind that provision going to be applicable. So ये बात, ये आंसर भी हमने FAQ का सॉल्व कर दिया. What is the implication of late fees from financial year 23-24 onwards? अब आपने एक चीज देखा कि आपको ये इनिशियल 6 सालों के लिए उसने बेनिफिट दी। अब 23-24 का एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर 24 को जाना था, और मान लीजिए आपसे लेट हो गया 23-24 का, तो लेट फीस अगर आपको देनी है तो कितनी देनी है? एज पर सेक्शन 47 सबसेक्शन 2 के हिसाब से, या फिर जो नोटिफिकेशन मैंने आपको रेफर किया 7/2023 सेंट्रल टैक्स डेटेड 31 मार्च 2025 के हिसाब से आपको लेट फीस इस नोटिफिकेशन के हिसाब से देनी पड़ेगी। लुकिंग एट योर टर्नओवर 5 करोड़ तक, 5 से 20 एंड मोर देन 20। पांचवा क्वेश्चन, मान लीजिए आपको सो कॉज नोटिस आ गया है फॉर डिमांडिंग लेट फीस फॉर बिलेटेड फाइलिंग ऑफ 9C। आपको डिपार्टमेंट ने कहा कि आपने 9C लेट भरा है फॉर इनिशियल 6 फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेके 22-23 तक आपने लेट भरा है, इवन दो GSTR 9 आपने टाइम पे भरा था और आपने भरा विथ लेट फीस के साथ, पर उनने आपको सो कॉज नोटिस किस बात की दी, इंप्यून्ड ऑर्डर किस बात का दिया कि 9C आपने लेट भरा है, लेट फीस पे करनी पड़ेगी। डू वी नीड टू पे लेट फीस फॉर बिलेटेड फाइलिंग ऑफ 9C फॉर इनिशियल 6 years? Answer is no late fees waiver by notification number 8/2025 सेंट्रल टैक्स। एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि वो बोलता है ना फाइल्ड बाय 31 मार्च 2025, तो आपने तो फाइल कर ही दिया बट लेट भरा था, तो इस नोटिफिकेशन से आपको रिलीफ मिल जाएगी। तो ऐसी सो कॉज नोटिस या अपील, इम्प्यून्ड ऑर्डर, जिसकी मान लीजिए आपने अपील फाइल कर रखी है, उसको आप डिफेंड कर सकते हैं, यू कैन डिफेंड अकॉर्डिंगली। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लीजिए बिलेटेड फाइलिंग ऑफ 9C के लिए आपके पास लेट फीस की नोटिस आई और आपने लेट फीस पे भी कर दी, तो क्या उसका रिफंड आपको मिलेगा? वेदर यू विल गेट द रिफंड? सो नोटिफिकेशन 8/2025 सेंट्रल टैक्स क्लियरली सेइंग आपको रिफंड नहीं मिलेगा। दैट इज नॉट परमिसेबल, दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। Coming back to the threshold limit for filing 9 and 9C starting from 17-18, we have created one table for you which will give you the quick glance what was the limit for filing 9 and 9C starting from 17-18. 17-18 it was mandatory for all registered person GSTR 9, and for 9C limit was 2 crore. 18-19 it was mandatory for all registered person 9. 9C the threshold was 2 crore. 19-20 it was exempt. 9 was exempt for taxpayer up to 2 crore. So 9 was required to be filed only when aggregate turnover is more than 2 crore. And 9C threshold increased from 2 to 5 crore. 2021 onwards, it was exempt when your aggregate turnover is up to 2 crore for GSTR 9, and threshold for filing 9C was increased to 5 crore, and which is going on 2021 onwards. So this table we have captured with key thresholds since the inception of GST. This limit may vary based on government notification or update specific to different financial year.
from 2021 onwards, the threshold limit for 9C, which was increased to 5 crore, requirement of certification by practicing chartered accountant and cost accountant was removed. And since then, 2021 onwards, it is self-certified by the registered person. So that is how the all FAQ, which we have dealt with for answering all probable queries on late fees pertaining to GSTR 9 and 9C. Hope this video will help for getting more clarity on the subject matter when there is waiver of late fees. And I've also given a glance that henceforth, what would be the late fees starting from 22, 23 onwards. Write that notification 7/2023 Central Tax. Lot many. Stay tuned. Thanks for watching. Thank you very much.